हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल श्री रामबान एजुकेशन। इसमें बोर्ड एग्ज़ाम जो नवंबर 2021 में हो रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर, उसके आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट सच एज हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इससे आपका बेस पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। कोई भी एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक फॉलो करने का दरकार नहीं पड़ेगा और बोर्ड कोई भी क्वेश्चन देगा उसको अपने आसानी से फोड़ सकेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू बच्चों। आज सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन में चैप्टर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। ये पार्ट 5th वीडियो है, 25 क्वेश्चन है। इससे पहले 4 पार्ट बन चुका है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, और हर पार्ट में 25 क्वेश्चन हैं। तो आपको ये वीडियो करने के बाद आपको 125 क्वेश्चन मिल जाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा पार्ट 1, 2, 3, 4 प्लस अदर सब्जेक्ट्स का भी मिल जाएगा और अदर चैप्टर्स इन इकोनॉमिक्स का भी मिल जाएगा, जिसे आप देख सकते हैं। ये 125 क्वेश्चन कर लोगे तो आपका पूरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर से आपका पूरा का पूरा बेस क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करने से पहले वही सिस्टम रूल्स बता देता हूँ। क्वेश्चन, फिर चारों ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन ख़त्म होने के बाद 10 सेकेंड का टाइमर आएगा और उसके बाद आंसर आएगी। तो अपना टारगेट बोर्ड में 40 आउट ऑफ 40, उसी को लेके चलते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। डैम्स, पार्क, पावर प्लांट एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ ऑप्शन ए ट्रेड कैपिटल, ऑप्शन बी सोशल कैपिटल, ऑप्शन सी संक कैपिटल, ऑप्शन डी फ्लोटिंग कैपिटल। टाइम अप एंड करेक्ट आंसर इज सोशल कैपिटल। डैम्स, पार्क, पावर प्लांट, तो ये सब सोसाइटी यूज़ करता है, तो इसीलिए सोसाइटी सोशल कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 2, डैश इंक्लूड्स upper surface of soil and free gift of nature such as air, water, climate, forest, river, etc. Option A labor, option B capital, option C entrepreneur, enterprise, option D land. Time up and the correct answer is option D land. Question number 3, the amount of wealth a country adds to its capital during a period is known as the capital formation. During that period, the statement was given by option A Marshall, option B Scrumter, option C Benham, option D Cairncross. Time up and the correct answer is option C Benham. Question number 4, which among the following is the characteristics of capital? Option A elastic supply, option B not a permanent factor, option C risk of return in the use of capital, option D all of these. Time up and the correct answer is option D all of these. Question number 5, dash consists of tools and instrument, plant and machinery, factory, etc. with the producer which are used in the production of goods and services. Option A capital goods, option B financial goods, option C company goods, option D none of this. Time up and the correct answer is capital goods. Question number 6, capital formation is equal to total investment minus dash. Option A interest,
Option B, land. Option C, labor. Option D, depreciation. Time up, and the correct answer is option D, depreciation. Question number 7. Which of the following is not a characteristics of labor? Option A, labor has weak bargaining power. Option B, labor differs in efficiency. Option C, labor is less mobile. Option D, labor cannot improve its efficiency. Time up, and the correct answer is option D, labor cannot improve its efficiency. By training, education, labor can improve its efficiency. Question number 8. An ice factory is an example of option A, sunk capital. Option B, floating capital. Option C, both A and B. Option D, none of these. Time up, and the correct answer is sunk capital. आइस फैक्ट्री, ऑयल मिल, ये सब संक कैपिटल में होंगे क्योंकि उनका जो प्लांट मशीनरी है वो और कोई चीज़ में प्रोडक्शन के लिए हेल्प नहीं कर सकता है. क्वेश्चन नंबर 9. Arrangement of labor power in such a way so as to maximize the amount and quality of the output is called option A, efficiency of labor. Option B, division of labor. Option C, entrepreneur. Option D, none of these. Time up, and the correct answer is division of labor. यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ लेबर हो रहा है तो डिवीजन ऑफ वर्क हो रहा है. क्वेश्चन नंबर 10. Factor that determine the productivity of land is option A, state help. Option B, availability of capital. Option C, ownership of land. Option D, all of these. Time up, and the correct answer is all of this. स्टेट हेल्प मतलब गवर्नमेंट से हेल्प मिलेगा. मान लो लो क्रेडिट में, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्रेडिट है सब, या क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा. अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, अगर आपके पास कैपिटल ज़्यादा है तो आप बेस्ट क्वालिटी ऑफ सीड्स, फर्टिलाइज़र, मैन्योर इस्तेमाल कर सकते हो. ओनरशिप ऑफ लैंड, अगर आपका खुद का ज़मीन है तो आप ज़्यादा मेहनत करके करोगे, और रेंट में लियो तो आप कुछ भी इस्तेमाल करोगे ताकि आपको ज़्यादा से फ़ायदा हो सके. तो ओनरशिप ऑफ लैंड ऑल्सो इज़ एन इम्पॉर्टेंट that determines the productivity of land. Question number 11. What are the factors affecting the efficiency of labor? Option A, level of wages. Option B, duration of work. Option C, machinery and equipment. Option D, all of these. टाइम अप, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस. अगर आपका लेवल ऑफ वेजेस ठीक है तो आप मन लगा के काम करोगे तो आपका एफिशिएंसी बढ़ेगा. ड्यूरेशन ऑफ वर्क, अगर आपका टाइम लिमिट फिक्स है 8 आवर्स अ डे तो भी आपका एफिशिएंसी बढ़ेगा. और अगर आपको बेहतर प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट मिले तो आप अच्छा से काम कर पाओगे और इसके कारण आपका एफिशिएंसी बढ़ेगा. क्वेश्चन नंबर 12. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेबर इज Option A, labor as alternative uses. Option B, labor as typical nature of supply. Option C, human factor. Option D, all of these. Time up, and the correct answer is all of these. Question number 13. What are the functions of entrepreneur? Option A, choice of technique of production.
Option B, innovation function. Option C, distributive function. Option D, all of these. टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। देखिए ऑल ऑफ दिस में ये सब में आपको मैं फंक्शंस हो चाहे लेबर का हो करेक्टरिस्टिक्स, आपको एक एक ईच एंड एवरी पॉइंट कराने का मेरा मतलब टारगेट था, तो ईच एंड एवरी पॉइंट को कवर करके मैं बनाया हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? ऑप्शन ए लैंड, ऑप्शन बी लेबर, ऑप्शन सी कैपिटल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज लेबर। क्वेश्चन नंबर 15, any work or effort undertaken only for the sake of dash is not regarded as labor. Option A pleasure, option B social work, option C both A and B, option D none of this. Time up and the correct answer is option C both A and B. एनी वर्क, कोई अगर आप काम करते हैं, लेबर कोई काम करता है विदाउट कोई प्रॉफिट मोटिव को छोड़ के खाली आपका प्लेजर के लिए या सोशल वर्क करे, तो वो इकोनॉमिक्स में लेबर नहीं कहलाता। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड? ऑप्शन ए डिफर इन फर्टिलिटी, ऑप्शन बी इनमोबिलिटी, ऑप्शन सी सप्लाई इज नॉट फिक्स्ड, ऑप्शन डी फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज सप्लाई इज नॉट फिक्स्ड। द सप्लाई ऑफ लैंड इज फिक्स्ड। क्वेश्चन नंबर 17, which of these will not be considered labor in economics? Option A, a carpenter making a table, option B, a dancer performing a concert, option C, a singer singing a song in his house, option D, a surgeon performing an operation. Time up and the correct answer is a singer singing a song in his house. कोई सिंगर अपना घर में गाना गाता है तो वो लेबर नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए उसको कोई पैसा नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 18, which of the following will improve the efficiency of labor? Option A, provision of adequate social security scheme, option B, low wages, option C, racial characteristics, option D, uncongenial factory environment. Time up and the correct answer is option A, provision of adequate social security scheme. अगर उनका रिटायरमेंट के बाद अगर उनको पेंशन उनसन का अगर सिक्योरिटी मिल जाए तो वो अच्छा से काम करेंगे, काम करने के टाइम में इधर उधर सोचेंगे नहीं, तो उनका एफिशिएंसी बढ़ेगा। और अगर उनको टेंशन रहेगा भाई रिटायरमेंट के बाद ये काम से निकाल दिया जाऊंगा, उसके बाद क्या करूंगा, तो उसका ध्यान, उसका कंसंट्रेशन वर्क में होगा नहीं, तो उसका एफिशिएंसी बढ़ेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 19, बाय लैंड is meant the material goods and the forces which nature gives freely for man's aid in land and water, in air and light and heat is said by। डेफिनेशन कौन दिया था? ऑप्शन ए कार्निक्रॉस, ऑप्शन बी मार्शल, ऑप्शन सी स्क्रम्प्टर, ऑप्शन डी रॉबिन्स। Time up and the correct answer is option B, Marshall.
मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप मार्शल का डेफिनेशन ज़रूर से याद रखिएगा, क्योंकि अल्फ्रेड मार्शल बहुत बड़े इकोनॉमिक्स थे, तो उनका डेफिनेशन प्राय हर जगह चलता है। क्वेश्चन नंबर 20, लेदर कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स लाइक शूज, बेल्ट, टॉयज एक्सेट्रा। द टाइप ऑफ कैपिटल लेदर इज ऑप्शन ए फिक्स कैपिटल, ऑप्शन बी संक कैपिटल, ऑप्शन सी फ्लोटिंग कैपिटल, ऑप्शन डी सोशल कैपिटल। Time up, and the correct answer is option C, floating capital. Question number 21. Capital which is invested in private sector or by private people is known as option A public capital, option B private capital, option C production capital, option D consumption capital. Time up, and the correct answer is private capital. Question number 22. The capital which helps a laborer to produce goods. Option A remunerative capital, option B auxiliary capital, option C internal capital, option D external capital. टाइम अप, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑक्सिलरी कैपिटल। जैसे कि एक कारपेंटर है तो उसके लिए हैमर, पाइलर, वुड, ये सब ऑक्सिलरी कैपिटल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, द यूटिलिटी क्रिएटेड बाय रिमूविंग एन आर्टिकल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज नोन एज ऑप्शन ए फॉर्म यूटिलिटी, ऑप्शन बी सर्विस यूटिलिटी, ऑप्शन सी टाइम यूटिलिटी, ऑप्शन डी प्लेस यूटिलिटी। टाइम अप, एंड द करेक्ट आंसर इज प्लेस यूटिलिटी। जैसे कि सैंड नदी के पास, रिवर के पास रहेगा, रिवर में तो उसका कोई यूटिलिटी नहीं है, लेकिन वही सैंड अगर कोई कंस्ट्रक्शन साइट में आ जाए तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है, तो प्लेस यूटिलिटी हो कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 24, कन्वर्सन ऑफ कॉटन इनटू कॉटन क्लोथ्स इज एन एग्जांपल ऑफ ऑप्शन ए फॉर्म यूटिलिटी, ऑप्शन बी प्लेस यूटिलिटी, ऑप्शन सी टाइम यूटिलिटी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। Time up, and the correct answer is form utility. Question number 25, ये पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। An informative advertisement is an example of option A service utility, option B possession utility, option C knowledge utility, option D place utility. टाइम अप, एंड द करेक्ट आंसर इज नॉलेज यूटिलिटी। इसी के साथ आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का 5 पार्ट कंप्लीट होता है, 125 क्वेश्चन, और साथ ही साथ इकोनॉमिक्स का भी आपका जितना भी था चैप्टर सारा कंप्लीट है। डिमांड आपका 3 पार्ट में बना है, जिसमें इलास्टिसिटी और डिमांड दोनों है। सप्लाई 2 पार्ट में बना है, सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 5 पार्ट में बना है, और मार्केट 3 पार्ट में बना है। तो आपके सारे चैप्टर को कवर करके इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन का मैं कोशिश किया हूँ बना के आपको देने का, ताकि आपको बोर्ड में कोई परेशानी नहीं हो। तो आपको अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड कीप वॉचिंग माय वीडियो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।